गुड मॉर्निंग पूजा मैम। मैं अमित। मेरा Good वॉइस आ रहा है? morning. Good morning. मॉर्निंग। সকলোকে নমস্কাৰ। আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে যিসকল জইন হৈছে, মোৰ পৰিচয়টো দি দিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অমিত দত্ত আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনালোক সকলোকে আজিৰ আমাৰ এই CRE প্ৰগ্ৰামৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কিছু সময় অপেক্ষা টাইমটো দিয়া গৈছিলে, অলপ সময় অপেক্ষা কৰোঁ ডেট সকলোৱে যাতে জইন হৈ যায়। তাৰপিছত আমি আজিৰ আলোচনা চক্ৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো মই এবাৰ আপোনালোক সকলোকে এবাৰ অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দি দিব ডেট সকলোৱে যাতে জইন হৈ যায়। কতটা লাগবো? তো মই ইয়াতে দেখা পালোঁ গৌতম ঠাকুৰীয়া ছাৰ, নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনালোঁ ছেশ্যনটোলৈ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ভনিতা বাইদেউ নমস্কাৰ আৰু ছেশ্যনটোলৈ ৱেলকাম।
আজি এই আলোচনা চক্ৰটোত আমাৰ টোটেল 8খন জিলাৰ স্পেচিয়েল এডুকেটৰ আই ফাংচনাৰিজ প্ৰফেচনেলছ আৰু লগতে আমাৰ ডিপিঅ আই ছাৰ বাইদেউসকল জইন হ'ব সো আমি অলপ দেৰি वेट কৰি লওঁ আৰু 2-3 मिनट তাৰপিছত আমি স্টাर्ट কৰি দিম पूजा मैम हम थोड़ा सा समय वेट कर लेंगे और 2-3 मिनट क्योंकि अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है जी थैंक यू So আমাৰ লগত এতিয়া অলমোস্ট 45 প্লাস পাৰ্টিসিপেন্টস কানেক্ট হৈছে সো মই এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ ডিপিঅ স্যাৰ মেম কলক যে আমি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰো নে এতিয়া নে অলপ অপেক্ষা কৰি লম অমিল জি হয় পাৰ্টি কি স্টাৰ্ট কৰিব স্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰো ন স্যাৰ নিশ্চয় নিশ্চয় হয় সো আৰু এটা কথা আমাৰ এই সেশনটো ৰেকৰ্ডো থাকিব সো আফটাৰ এই যি ওৰিয়েন্টেশনটো হ'ব তাৰ পিছত মই প্ৰগ্ৰামৰ ৰেকৰ্ডিংছখিনি গ্ৰুপত দি দিম আৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিব আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰুপটো এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব ৰেকৰ্ডিংটো ইন কেছ কোনোবাই যদি মিছ কৰিছে তো তেওঁলোকে ৰেকৰ্ডিংখিনি চালেও গোটেই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ওকে সো আজি এতিয়া আৰু আমি পলম নকৰো আমি আজিৰ যোনটো আলোচনাটো আছে সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম তো মই এবাৰ চিনাকি কৰাই দিওঁ আমাৰ মাজত পূজা দাস মেম আছে আমাৰ প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন টিমৰ দিল্লী হেড অফিচৰ পৰা তো তেখেতে প্ৰগ্ৰামটো আগবঢ়াই লৈ যাব
গোটেই CRE প্ৰগ্ৰামটো কি হয়, এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ সকলো স্পেচিয়েল এডুকেটৰ যি আমাৰ আই প্ৰফেচনেলছ আছে, আই ফাংচনাৰিজ আছে, সকলোকে কেনেকৈ বেনিফিট দিব আৰু আমি এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে 50 CRE পইণ্টছ কেনেকৈ আমি পাব পাৰোঁ, সেই গোটেই আলোচনাটো বিতংভাৱে মেমে আমাৰ মাজত কথাখিনি ৰাখিব। আৰু এটা অনুৰোধ থাকিব আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত যে কাৰোবাৰ যদি কিবা কুৱেৰি থাকে, ডাউট থাকে, তো আপোনালোকে এই ছেশ্যনটোৰ মাজতে সুধিব। আৰু আমি এটা গ্ৰুপো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, সেই গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ চ' ডেট যিখিনি ডিউৰেশ্যনলৈকে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো চলাই লৈ যাম বা আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, তাৰে মাজত যিহেতু এইটো গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মত আছে, কিবা যদি টেকনিকেল ইছ্যু থাকে বা কিবা কুৱেৰিজ থাকে, আপোনালোক আমাৰ সেই গ্ৰুপৰ মাধ্যমত বা পাৰ্চনেলি আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, চ' ডেট আমি সেইখিনি যাতে ৰিজল্ভ কৰিব পাৰোঁ। চ' এইখিনি কৈয়ে মই এতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰিম আমাৰ पूजा दास मैम। सो पूजा मैम, अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि अमित जी ने आपको बता ही दिया है, आज हम CRE प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी ऑफिसर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और जितने भी RCI प्रोफेशनल्स हैं हमारे बीच में ज्वाइन है आज के सेशन में, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम कि आपने निकाल कर आज के सेशन को ज्वाइन किया। बेसिकली सेशन ही रखा गया है कि हमारे जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन में CRE प्रोग्राम जो आपको देखने को मिल रहा है, अवेलेबल है, इसी प्रोग्राम से रिलेटेड काफ़ी RCI प्रोफेशनल्स का काफ़ी डाउट्स होते हैं कि कैसा प्रोग्राम है, कैसे रहने वाला है, ड्यूरेशन क्या होगा, फ्री है या नहीं है, कितने CRE पॉइंट्स मिलेंगे। तो आज के सेशन में आज आपको सारी क्लैरिटी दी जाएगी, आप सबको एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं पूजा, श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम के द्वारा आपके साथ ज्वाइन हूँ। एंड CRE प्रोग्राम जो है वो आपको हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको 50 CRE पॉइंट्स वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। क्या प्रोसेस रहेगा, आइए आज हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट इंक्लूजन का प्रोग्राम है, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूँगी। श्री अरविंदो सोसाइटी जो है वो एक इंटरनेशनल NGO है जिसका हेडक्वार्टर पुडुचेरी में है एंड इसके 300+ सेंटर्स एंड ब्रांचेस है अक्रॉस 7 कंट्रीज, ठीक है, और इसे रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सोशल साइंसेस अंडर DSIR के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। तो हमारा जो श्री अरविंदो सोसाइटी है इसे नेशनल इम्पोर्टेंस भी मिला है एंड ये डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करता है, बट जो हमारा मेन फोकस है वो एजुकेशन पे है। एंड एजुकेशन के लिए हमारा एक प्रोग्राम है रूपांतर प्रोग्राम, जिसके अंडर ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन हमारा जो प्रोग्राम है वो आता है। सो प्रोजेक्ट इंक्लूजन एंड CRE के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। एज RCI प्रोफेशनल्स आपको ये पता होगा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो कि करंट सिचुएशन को दर्शाती है। भारत में जनगणना हुई थी 2011 में, सेंसस हुआ था 2011 में, तब ये पाया गया कि 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इन इंडिया। एंड जब हम बात करें सिर्फ बच्चों की, अगर बात की जाए मतलब अंडर 19 ईयर्स तक के बच्चों की अगर हम बात करें, तो यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी 2019 में, तब ये पाया गया कि 78 लाख प्लस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं इन इंडिया। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें, अगर हम सिर्फ 5 साल तक के बच्चों को लेकर चले, तो 5 साल तक के बच्चों में से 3/4 तो ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं। जब मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी स्कूल ही नहीं जा रहे, किसी प्रकार का भी एजुकेशन वो नहीं ले रहे हैं। और अगर 5 to 19 ईयर्स तक के बच्चों की बात करूँ तो उनमें 1/4 ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो एजुकेशन है वो हमारा राइट है, राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है। तो कैसे इन बच्चों को उनका अधिकार, उनका राइट भी नहीं मिल पा रहा है।
और ये तो उस समय की बात है जब पीडब्ल्यूडी एक्ट ने सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आप लोगों को एक ऑटोमेटिकली एक अंदाजा हो गया होगा ये जो काउंट है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इस चैलेंज और कंसर्न का सॉल्यूशन ही क्या है? तो इसका ऑब्वियसली इसका एक सॉल्यूशन है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आरसे प्रोफेशनल्स का ट्रेन होना भी बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब के सॉल्यूशन पर बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स भी हैं, जिसका एक छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, कि हम कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे, सभी को एजुकेशन मिल सके, ठीक है, किसी को भी एजुकेशन से डिनाई ना किया जाए। एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है। उसके बाद हमारा UNCRPD जो कि फुल पार्टिसिपेशन एंड एक्सेसिबिलिटी पर जोर देता है एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, वो भी पार्टिसिपेट करे, उनके लिए भी सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो, उस पर बात करती हैं। और इसमें इंडिया ने भी साइन कर रखा है। साथ ही साथ NAP 2020, आपको पता ही है कि NAP 2020 तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल टीचिंग पर बात करती है और इन बच्चों के लिए बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करते हैं कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग होना चाहिए, UDL। और ये ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना ज़रूरी है नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स का होना इन बच्चों के लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका डाइवर्स लर्निंग नीड्स होता है और हर बच्चा प्रोग्रेस कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, कोई भी बच्चा अलग थलग ना रह जाए, इस बात का हमें पूरा ध्यान देना है। ड्रॉप आउट्स ना हो, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं जब वो ठीक से अपने मेन स्ट्रीम में वो ठीक से घुल मिल नहीं पाते हैं तो वो ज़्यादातर स्कूल्स को छोड़ देते हैं या एजुकेशन ही छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है इन बच्चों का। तो ये ना हो, इनको भी एजुकेशन मिल सके, इनकी डिफ़िकल्टीज़ को भी हम समझने योग्य बन सके, इनको भी टाइमली सपोर्ट पहुंचाया जा सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिसेस हो, फ्लेक्सिबल लर्निंग हो, इन सब पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव हो। एंड इन्हीं सभी पर बात आपको पता ही है कि नेशनल पॉलिसीज है, NAP 2020 हो या RTE हो, RPWD एक्ट हो, तो ये सभी का मिलजुल कर एक ही मकसद है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हम ला सके, इन बच्चों तक हम सपोर्ट पहुंचा सके। तो इसी पर काम करता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जो जर्नी है वो 2016 में स्टार्ट हुई। इट मीन्स ये प्रोग्राम 2016 में लॉन्च हुआ था एंड स्टार्टिंग में हमने इस प्रोग्राम को ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू किया था। आज जैसे ये प्रोग्राम डिजिटलाइज्ड है तब ये नहीं था, तब हम टीचर्स तक जाते थे, फिजिकल ट्रेनिंग उनको दिया करते थे 2 से 3 दिन तक का। तो हमने उसी समय 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने कवर किया, 20,000 प्लस टीचर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। उन्हीं 20,000 रेगुलर क्लासरूम टीचर्स ने अपने क्लास में से ऐसे बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए आइडेंटिफाई किया, स्क्रीनिंग की जिनको उनका डाउट था कि शायद इन बच्चे में भी कोई कंसर्न या डिफिकल्टीज है, शायद ये बच्चे में भी कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, छिपी हुई अक्षमता। और जब हमारे एक्सपर्ट टीम ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया तो पाया कि 6,600 कंफर्म NDT के केसेस पाए गए थे। तो ये उस समय की बात है। एंड देन जब हम फिजिकली एंड ग्राउंड लेवल पर टीचर्स तक जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, फिर 2020 आया, कोविड आ गया था, पॉसिबल नहीं था कि ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सकें, तो हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया एंड डिजिटली हम बहुत ज़्यादा टीचर्स एंड एजुकेटर्स से जुड़ पा रहे थे एक ही समय पर। तो ये हमारा सबसे पहला तो ये हुआ कि हमारा टाइम हमारे लिए रिड्यूस्ड हुआ, टाइम हमारा बहुत सेव कर रहा था। इवन एक ही टाइम पे हम बहुत सारे टीचर्स तक सपोर्ट पहुंचा पा रहे थे, उनको सेंसिटाइज कर पा रहे थे। इसी के साथ 2022 के बाद की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने सारे ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने कवर किया है। 4 लाख प्लस एजुकेटर्स को हमने सेंसिटाइज किया है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हो गई है, 10 लाख से ज़्यादा हमने पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान शेयर किया है अकॉर्डिंग टू बच्चों के कंसर्न्स। तो ये हमारी प्रोजेक्ट इंक्लूजन की जर्नी है और यही प्रोजेक्ट इंक्लूजन ने लॉन्च किया है CRE प्रोग्राम।
और यही नहीं कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन सिर्फ सीआरई प्रोग्राम पे काम कर रहा है, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है। तो उसका भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगी, जिससे कि आप लोगों को सारे सपोर्ट्स मिल सके। सबसे पहले हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करते हैं। तो डिजिटली ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे एजुकेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगा, जिससे कि हर कोई सेंसिटाइज हो और नॉलेज मिल सके। एडिशनली हमारे ऐप में इंडियन साइन लैंग्वेज का कोर्स है, तो जिनको भी इंटरेस्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज करने का भी, जो सीखना चाहते हैं, तो वो कोर्स कर सकते हैं। ये ISLRTC के द्वारा ये कोर्स हमारे ऐप में है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप एंड वेब में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इजीली 10 मॉड्यूल्स है इसमें, और बहुत ही आसानी से आप इंडियन साइन लैंग्वेज को सीख सकते हैं इस कोर्स के द्वारा। इसी के साथ कुछ सेंटर्स भी है हमारे, जिनको हम सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफ मदर्स डेज के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक ऐसा रिहैबिलिटेशन हब्स है, फिजिकल रिहैबिलिटेशन हब्स, जहाँ पर जिन बच्चों को डिफ़िकल्टीज है, कंसर्न्स है, तो वो ऐसी जगहों पे जाके सपोर्ट उनको मिलता है। यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट होते हैं साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, तो सारे ऐसे प्रोफेशनल्स आपको मिलते हैं जो इन बच्चों को सपोर्ट पहुंचाते हैं। तो इसके कुछ सेंटर्स हैं हमारे चंडीगढ़ में, देहरादून में, गाजियाबाद, मुंबई, तिरुपति एंड दिल्ली में भी है। साथ ही साथ हम इंक्लूसिव सिस्टम पे लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हम गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हो, या केंद्रीय विद्यालय स्कूल के साथ हो, या आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ हो, समग्र शिक्षा के साथ हो, या RCI के साथ, या ISLRTC के साथ, या DEPWD के साथ, लगातार हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंसिटाइज कर पाए एजुकेटर्स को हो या फिर अदर स्टेक होल्डर्स को हो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पहुँचाया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे। तो डिजिटली हमारे कंटेंट तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें हमारे एक्सपर्ट भी मिलते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर होते हैं, जो आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो आपको कोई बच्चे को लेकर भी डाउट है तो आप उनसे डायरेक्टली कंसल्ट कर पाते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। एंड इसी का ही एक पार्ट है प्रोजेक्ट इंक्लूजन का CRE प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो CRE प्रोग्राम है वो सभी RCI प्रोफेशनल्स के लिए है। हर RCI प्रोफेशनल्स इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसमें 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी मिनिमम 3 मंथ का ये ड्यूरेशन है। मीन्स एटलीस्ट आपको 3 मंथ इस प्रोग्राम में देना होगा, इससे पहले आपको CRE पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट 3 मंथ्स आपको इस प्रोग्राम में काम करना होगा, बिल्कुल फ्री है। और डिटेल में आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। CRE प्रोग्राम 3 फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज 1, जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप वेब में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन होता है। एंड रजिस्टर करने के बाद आपको उसमें एक कोर्स मिलेगा, जिसका आप कोर्स जब आप ओपन करते हैं, उसमें आपको 21 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप ये मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर आप मूव कर जाते हैं फेज 2, जिसमें कि आपको एटलीस्ट किसी एक बच्चे की तो स्क्रीनिंग करनी है। बच्चे को चूज आप कहीं से भी कर सकते हैं। इट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से, स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, नेबरहुड से, कहीं से भी आप एक बच्चा चूज कर सकते हैं और उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग जब आप कर लेते हैं तो उसके रिलेटेड कुछ पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान्स आपको ऐप में भी मिलेगा। इवन आप लोग RCI प्रोफेशनल्स हैं तो आपके पास भी अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज होती ही हैं। तो आप उन बच्चे के साथ जब काम करेंगे तो उसके रिलेटेड आप लोग TLM भी बनाते हैं। तो उसी TLM के पिक्चर और उसी TLM के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको अपलोड करना है ऐप में, जो कि फेज 2 है। जैसे आप अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो रिव्यू करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर। एंड जैसे रिव्यू करते हैं, अगर आपका TLM एक्सेप्ट होता है तो आप अपेयर करते हैं फाइनल असेसमेंट के लिए, जो कि 10 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। जब आप उस असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं और 60 to 60% आप स्कोर करते हैं, तो आपका CRR नंबर हम RCI को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। और इसी तीनों फेसेस के बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। तो जब आप रजिस्टर करेंगे,
ओके, सो जब आप रजिस्टर करेंगे, एम आई ऑडिबल? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, यस आ रहा है। ओके, थैंक यू। तो जब आप सीआरई प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको ना लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको सीआरई प्रोग्राम पे क्लिक करना है। एक अलग से ही ऑप्शन मिलेगा आपको सीआरई प्रोग्राम। आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको उसी में रजिस्टर करते हुए कोर्स मिलेगा इंक्लूजन एंड न्यूरोडाइवर्सिटी पर, जिसमें टोटल 21 मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल्स में लगभग 3 to 4 चैप्टर्स हैं जो कि ऑडियो विजुअल बेस्ड है, मींस एनिमेटेड वीडियोस हैं। 2 to 3 मिनट्स के ये वीडियोस होंगे। मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है क्योंकि हमें पता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं बनना चाहिए, भाषा की बाधा ना हो कोर्स करने में, इसलिए मल्टी लैंग्वेजेस में है। करेंटली 9 लैंग्वेजेस में है हमारे ऐप में अवेलेबल। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, असमीज एंड आपको तेलुगु में भी देखने को मिलेगा, पंजाबी में भी है। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इस कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा। तो इस कोर्स में आपको इंट्रोडक्शन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रन विद एनडीडी मीन्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिसेबिलिटीज के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी, नॉलेज, क्या हमारे इनके लिए, इन बच्चों के लिए पॉलिसीज होती हैं एंड क्या स्ट्रैटेजीज है, बहुत चीज़ें आपको हमारे कोर्स में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है इस कोर्स के द्वारा। इसी के साथ ये नहीं कि खाली वीडियोस ही हैं, एनिमेटेड वीडियो पूरा देखने के बाद आपके पास एक रीडिंग मटेरियल भी आएगा। तो जिन यूजर्स एंड आप लोगों को पसंद है रीडिंग करना, तो आप लोग वीडियो देखने के बाद रीड करते हुए भी कोर्स को कर सकते हैं। राजकुमार सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐप में कैसे शो होगा। देखिए, जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे ना, तो इंक्लूजन ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम, यही कोर्स का नाम है। आपको इसी पे क्लिक करना है, मॉड्यूल्स ओपन होंगे, एक एक मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हुए आपको आगे मूव करते रहना है। तो इस तरीके से पूरा आपको ऐप में देखने को मिलेगा। एंड ये एक सैम्पल वीडियो है कि किस तरीके के वीडियोस आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। पूजा मैम, ये ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है, वीडियो तो विजिबल है लेकिन इसका ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके ओके, एक मैं अगेन प्रेजेंट कर देती हूँ एंड आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि इज इट विजिबल और नॉट। काइंडली वेट। जी ठीक है। ओके, Dyslexia, understanding the disorder हाँ, it's audible now. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old.
and this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with सो आई होप आप सब में एक आइडिया लग गया होगा आप सबको बेसिकली कि किस तरीके का वीडियोस होने वाला है एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू किस तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हर एक डिसेबिलिटीज के बारे में कैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और सिंपल लैंग्वेजेस में समझाया गया है। तो ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे कोर्स में हर एक मॉड्यूल्स और चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे एंड ये सारे वीडियोस भी अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, मल्टी लैंग्वेजेस में है। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में वीडियो को भी देखते हुए और कोर्स को कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रीडिंग मटेरियल भी दिखा देती हूँ। तो ये रीडिंग मटेरियल का सैम्पल है एंड इसमें बहुत आसान लैंग्वेजेस में आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया है और बताया गया है। आप बहुत ही आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। सो जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे सब 21 के पूरे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आता है आपके पास एक फाइनल असेसमेंट। आपके पास जब वो असेसमेंट आएगा और एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट होते हैं और जब आपका स्कोर 70% या उससे ज़्यादा आता है तो आपको ये स्कोर कार्ड मिलेगा। इसका मतलब कि आपने सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, आपने फेज 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो ये स्कोर कार्ड आपको सबसे पहले जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हैं 70% या उससे ज़्यादा स्कोर करके, तो ये स्कोर कार्ड आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक फेज 1 है। और अब हम बात कर लेते हैं फेज 2 में स्क्रीनिंग के बारे में, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको स्क्रीनिंग करना होता है। तो स्क्रीनिंग जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप कहीं से भी बच्चे को चूज़ करके उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। एटलीस्ट एक बच्चे की स्क्रीनिंग आपको करना ही है इस प्रोग्राम में आगे मूव करने के लिए। एंड स्क्रीनिंग हमारे ऐप में 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्क्रीनिंग 1 कि बच्चे में क्या लिमिटेशंस एंड कंसर्न है। कहीं बच्चा 21 डिसेबिलिटीज़ के मेंशन 21 डिसेबिलिटीज़ जो RPWD एक्ट ने मेंशन कर रखा है उसमें तो फॉल नहीं कर रहा, तो इसी बारे में आपको स्क्रीनिंग 1 में पता चल जाता है। फिर आता है प्रोफाइलर फॉर्म कि बच्चे में की क्वालिटीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, वो आपको प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू पता चलता है। फिर आ जाता है एडवांस स्क्रीनिंग, जो कि हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है कि आखिर बच्चे का कौन से डोमेन में कंसर्न है, कॉग्निटिव में है, एकेडमिक में है, सोशल एंड कम्युनिकेशन में है, या फिर बिहेवियर में है, या मेंटल वेलबींग में है। कहाँ पर बच्चे को स्पेसिफिकली कंसर्न है वो डिटेल में समझने में हमें एडवांस स्क्रीनिंग हेल्प करता है। तो इसीलिए जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर फॉर्म और एडवांस स्क्रीनिंग तीनों कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीटेड मानी जाती है। ये देखिए इस तरीके के सैंपल्स है, ये ऐप में कैसे आपको स्क्रीनिंग स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, आपको पढ़ना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है एंड यस या नो में आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या बच्चा बात करते वक्त आई कॉन्टैक्ट करता है कि नहीं, यस या नो, तो वो आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपका एक ग्रेट ऑब्जर्वेशन हो बच्चे को लेकर। इसलिए एक बेहतर ऑब्जर्वेशन के साथ आप लोगों को स्क्रीनिंग करनी है और बिल्कुल ही सिंपल है, स्टेटमेंट्स आते हैं, आपको ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए सबमिट करना है। एंड ये जो स्क्रीनिंग टूल है वो क्लास स्पेसिफिकली, ग्रेड स्पेसिफिकली डिजाइंड है। फाउंडेशन क्लास 1 and 2, प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5, मिडिल क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 12। तो जब आप डिफरेंट ग्रेड ग्रुप्स में स्क्रीनिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग स्टेटमेंट्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड ये रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं। इंडिविजुअल स्क्रीनिंग 1 का भी अलग रिपोर्ट जनरेट होता है, प्रोफाइलर फॉर्म का भी अलग से रिपोर्ट जनरेट होता है एंड एडवांस स्क्रीनिंग का भी। तो तीनों रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे अलॉन्ग विथ द बेसिक डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भी आपको दिखेंगे स्क्रीनिंग में। तो ये पूरा रिपोर्ट्स आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपने एक बच्चे की स्क्रीनिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। फिर आता है ऑप्शन
जब आप स्क्रीनिंग भी कर लेते हैं तो इंटरवेंशन का ऐप में क्या हो जाता है, जैसे आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं बच्चे का एडवांस स्क्रीनिंग तक, तो रिपोर्ट्स में तो सब कुछ शो हो जाएगा आपको कि बच्चे में क्या कंसर्न है, डिफिकल्टीज है, क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए, कुछ अगर कंसल्ट करना है, रेफर करना है, सारी चीज़ें बताई जाती है। तो बच्चे के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग भी कुछ इंटरवेंशन प्लान्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरवेंशन प्लान्स जो बच्चे को लेकर आपको शेयर किए गए हैं, आप उन प्लान्स के साथ काम करना शुरू करेंगे। इवन आपके भी जो पर्सनल स्ट्रैटेजीज है आप उनको भी यूज़ करेंगे। और जब आप काम कर रहे होते हैं इसी टाइम पीरियड में आप लोग TLM भी बनाते हैं, राइट? तो जो TLM आप लोग बनाते हैं बच्चे के लेकर, जो बच्चे के साथ काम वो बेटर कर सके, उसको हेल्प हो सके, ऐसा TLM जब आप बनाते हैं तो उसी TLM की एक क्लियर पिक्चर आपको लेनी है। वो TLM फंक्शनल होना चाहिए, बच्चे के साथ आपने रियल में इम्प्लीमेंट किया हो, बच्चे में इफेक्टिव रहा हो, उस TLM का पिक्चर एंड उससे रिलेटेड एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप हमें शेयर करेंगे ऐप में अपलोड करके। तो TLM के 3 पिक्चर्स आप मैक्स टू मैक्स अपलोड कर सकते हैं 2 MB के। तो आप या तो TLM के एक आपको मैं सजेस्ट करूंगी, या तो आप एक डॉक्यूमेंट में भी अपलोड कर सकते हैं कि मल्टीपल पिक्चर्स एंड उसका एक्सप्लेनेशन आप लिखकर हमें भेज सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है आप उस तरीके से अपलोड कीजिए। बट TLM का पिक्चर क्लियर होना चाहिए, वो ब्लर ना हो। TLM का पिक्चर कहीं गूगल या इंटरनेट से आप लोग नहीं निकालना, आपको खुद बनाना है, या आपने वो यूज़ किया हुआ हो, एक ऐसा TLM होना चाहिए जो फंक्शनल हो, साथ ही साथ उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है? इसी के साथ जब आप TLM अपलोड कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग डेज अगर मान के चले 3 to 4 डेज, मैक्स टू मैक्स इतने दिनों के अंदर आपका TLM हमारे एक्सपर्ट के द्वारा रिव्यू भी हो जाता है। तो जैसे ही रिव्यू हो जाता है, अब रिव्यू में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट हो जाता है किसी भी रीजन से तो डोंट वरी, आपके पास अगेन ऑप्शन है अपलोड करने का, एंड साथ ही साथ हमारी टीम भी आपको कॉल करके इन्फॉर्म करेंगी कि क्यों TLM आपका रिजेक्ट हुआ है और आप नेक्स्ट टाइम क्या अपलोड करें, कैसे अपलोड करें, वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमारी टीम के थ्रू भी। बट अगर आपका TLM एक्सेप्ट हो जाता है तो और आपको 3 महीने में भी इस प्रोग्राम में हो चुके हैं, तो आपके पास आ जाता है फाइनल असेसमेंट, 10 MCQ क्वेश्चन के फाइनल असेसमेंट। और जब आप उस असेसमेंट को 60% या उससे ज़्यादा स्कोर करके क्लियर कर लेते हैं, तो आपका CRR नंबर जो है वो हम RCI को फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर RCI के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 20 to 30 डेज के अंदर आपके पास CRE पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है? देखिए ऐप में इंटरवेंशन प्लान्स कैसे शेयर है। इंटरवेंशन प्लान्स कंसर्न्स है, रीड प्लान पे क्लिक करते ही इंटरवेंशन प्लान्स ओपन हो जाते हैं। तो बहुत ही इजीली आप इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवन आप अपने भी स्ट्रैटेजीज बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब एक ओवरऑल कंप्लीट जर्नी मैं आपको बता देती हूँ, ओवरऑल जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में CRE प्रोग्राम में रजिस्टर करना है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद आप जैसे कोर्स पे क्लिक करते हैं, आपको हमारा 21 मॉड्यूल सेल्फ पेस्ड कोर्स मिलेगा। सेल्फ पेस्ड इट मीन्स इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इसी टाइम पे ये ऐप ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 24 आवर एक्सेसिबल हमारा एप्लीकेशन है और कोर्स भी। तो जब भी पूरे दिन में आप फ्री होते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ और बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री हमारा एप्लीकेशन कोर्स है। ये पूरा प्रोग्राम ही बिल्कुल फ्री है। तो जैसे आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है। एटलीस्ट किसी एक बच्चे की स्क्रीनिंग आप करें, पूरा एडवांस स्क्रीनिंग तक। जैसे आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चे के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग जो प्लान शेयर होते हैं आपको रेफर किया जाता है, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें। और बच्चे के साथ काम करते वक्त एक TLM आप बनाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन द प्लान, और बच्चे में जो इफेक्टिव हो, फंक्शनल हो, एक ऐसा TLM, उसकी एक क्लियर पिक्चर और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप हमारे ऐप में अपलोड करेंगे। हमारे एक्सपर्ट उसे रिव्यू करेंगे, और अगर आपका TLM एक्सेप्ट हो गया और आपको 3 महीने भी इस प्रोग्राम में हो गए, तो आपके पास फाइनल असेसमेंट
विजिबल हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 60% या उससे ज़्यादा आता है तो आपके CRR नंबर को हम RCI को फॉरवर्ड कर देंगे एंड मैक्स टू मैक्स 20 to 30 डेज के अंदर RCI के अकॉर्डिंग वो आपको पॉइंट्स 50 CRE पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये पूरा जर्नी एंड प्रोसेस रहेगा। तो बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम में, आप लोगों को एक आइडिया लग ही गया होगा कि ये डेवलप किया गया हमारे एक्सपर्ट के द्वारा अक्रॉस जो हमारे इंडिया में जो स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या फिर स्पीच थेरेपी एंड इंक्लूजन, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी रिहैब प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस के बेस पर एक्सपर्ट के द्वारा ये प्रोग्राम डिज़ाइंड है। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, स्टेप बाय स्टेप है। इसमें सिर्फ लर्निंग ही नहीं, बच्चे के सपोर्ट पे भी पूरा फोकस किया गया है, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके इन रियल वर्ल्ड थेरेपेटिकल एंड एजुकेशनल सेटिंग में भी इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। टाइम इफेक्टिव है क्योंकि आप अपने पेस पे से कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पूरे दिन में आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, सुबह करना है, रात को करना है, किसी भी टाइम करना है आप उस टाइम कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है बिल्कुल। मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि डिजिटल CRE लर्निंग में बेंचमार्क साबित होता है। हाई क्वालिटी आपको इसमें एक स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है क्योंकि एविडेंस बेस्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसमें जो कि अलाइंड है RCI नॉर्म्स के द्वारा और आपको CRE पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप सबको इसका लाभ मिले, इस पे हमारा पूरा फोकस है एंड पूरी स्ट्रांगली हम इंक्लूजन इकोसिस्टम पर हम काम कर रहे हैं और इसको हम प्राउडली एंड प्रमोट करते हैं। तो ये पूरा बेनिफिट है एंड इस पूरे जर्नी में आप लोग अकेले नहीं हैं। कहीं पर भी आपको डाउट या कंसर्न होता है, आपको डिफिकल्टी आ रही है, चाहे ऐप के रिगार्डिंग हो, स्क्रीनिंग कोर्स, किसी के रिगार्डिंग नहीं, तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल ID पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर 9 to 5 PM आपको रिस्पांस मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, बट आप अपना कंसर्न कभी भी पूछ सकते हैं। रिस्पांस आपको 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे मिल जाएगा एंड सपोर्ट मेल ID पे भी सेम, पर आप लोग डाउट अपना कभी भी पूछ सकते हैं। एंड इसी के अलावा ये हमारा QR कोड है, तो जो भी टीचर्स हमारा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जितने भी हमारे बीच में iOS यूज़र हैं जो iPhone यूज़ करते हैं या जो डेस्कटॉप में या लैपटॉप में करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, तो उसके लिए वेब लिंक है, दोनों का QR कोड प्रेजेंट है एंड सारे लिंक्स एंड डिटेल्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे चैट बॉक्स में भी एंड आपके साथ इवन आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जाएगा। तो ये सारे डिटेल्स हैं, आप इसको स्कैन करके भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, इसी डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये बेसिकली आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए होता है। तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो कहीं भी आपको डाउट आता है, आपका फीडबैक है, सजेशन है, कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ जानना है, किसी बच्चे के रिगार्डिंग बात करनी है, ऐप में कोई टेक्निकल इशू फेस करे, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है, आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे। इसका लिंक हमेशा सेम रहता है, तो इसी सेम लिंक पर कभी भी आपको कोई डाउट हो, कंसर्न हो, आप जुड़िए, आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि इसी लिंक पर हमारे एक्सपर्ट भी ज्वाइन करते हैं, स्पेशल एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, आपका कोई डाउट या कंसर्न है तो प्लीज़ आप पूछिए रिगार्डिंग दिस CRE प्रोग्राम। कोई भी डाउट या कंसर्न प्लीज़ अनम्यूट कीजिए एंड पूछिए। एनी डाउट जो भी आज हमने डिस्कस किया CRE प्रोग्राम के रिगार्डिंग। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। इज इट क्लियर? प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स शेयर कीजिए एंड कोई डाउट है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं गौतम ठाकुरिया, जी सर। वर्किंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर इंक्लूसिव एजुकेशन समग्र शिक्षा बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट।
ओके, यस। ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतना सारा मतलब बिजी शेड्यूल है हमारा जी, जी। ये ऑफिस का। तो हम्म। उसके बाद अलावा ये जो प्रैक्टिस टीचिंग प्रैक्टिस क्लास है, ये TLM प्रिपरेशन, ये सब कर पाऊंगा या नहीं, तो नहीं, इसमें थोड़ा डाउट हो गया है मैम। नहीं, ये ऐसा तो बिल्कुल भविष्य नहीं में है आ सर। जाएगा। हाँ, सर, ये इसलिए तो सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम इसे कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है आप जैसे काफ़ी प्रोफेशनल्स, इवन आप लोगों को बहुत बिजी स्केड्यूल होता है आपका, तो आप अपने पेस पे से कर सकते हैं। पूरे दिन में अगर आपको किसी दिन 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, 10 मिनट कीजिए, किसी दिन आपको बहुत टाइम मिल रहा है तो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, 24 आवर कभी भी आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। एंड इसका कोई लास्ट टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। इसका मिनिमम ड्यूरेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 दिन में आप लोगों ने, मतलब हम कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमने स्क्रीनिंग कर ली, इंटरवेंशन कर लिया, सब कुछ कर लिया और हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर हमें पॉइंट्स मिल जाए, तो इसलिए ऐसा नहीं है। 3 महीने तो कम से कम हमें इस प्रोग्राम में रहना होगा। इसलिए 3 महीने के बाद आप लोग एलिजिबल होते हैं CRE पॉइंट को अचीव करने के लिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 3 महीने बाद ही प्रोग्राम बंद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, तो आप अपने पेस पे कर सकते हैं सर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपने वीडियो तो देखा ही था, ऐसी 2-3 मिनट के वीडियो बेस्ड ही हमारा 21 मॉड्यूल का कोर्स है। बहुत लोग इसे 8 से 10 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सारे यूजर्स एंड एजुकेटर्स ने किया है। स्क्रीनिंग हार्डली आपको, अगर बच्चे का अच्छा ऑब्जर्वेशन हो तो 1 दिन के अंदर आप स्क्रीनिंग भी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। TLM आप लोग प्रोफेशनल है, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे के साथ काम करने के लिए TLM तो बनाते ही हैं। तो इसी बच्चे के रिगार्डिंग में, जिस बच्चे की भी आप स्क्रीनिंग करेंगे, जो भी आप TLM बनाते हैं, उसका बस एक क्लियर पिक्चर और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप हमें शेयर करेंगे, और वही TLM हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम रिव्यू करती है। एक्सेप्ट होने के बाद एक सिंपल सा बस असेसमेंट आपको क्लियर करना होता है, जो कि 10 MCQ बेस्ड असेसमेंट है, जो कि आप लोग बहुत ही इजीली आप इसे क्लियर कर सकते हैं। बस इतना सिंपल सा प्रोग्राम है सर, एंड ज़रूर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। और ये जो 3 महीने का बात सर कर आप बोल रहा है कि 3 महीने, तो ये 3 मंथ्स मैक्सिमम टाइम ना, और अगर हम मिनिमम ये 1 महीने के अंदर ही कर लूंगा तो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिनिमम मिलेगा। टाइम है। 3 महीने तक आपको करना ही है इस प्रोग्राम में काम। अच्छा, जी जी सर। मैम, हाँ जी सर, हाँ जी। बंगाल से बोल रहा है RP, रिसर्च पर्सन इंक्लूसिव एजुकेशन, बोटामरी ब्लॉक। 3 महीना में कंटिन्यू करने होगा क्या मैडम? 3 महीने तक आपको इस प्रोग्राम में काम करना होगा। इट मीन्स आप मान लीजिए आपने कर दो 1 महीने में सब कुछ लिया, और फिर आप चाहते हैं कि आपको CRE पॉइंट्स मिल जाए, तो वो नहीं होगा। आपको एटलीस्ट इस प्रोग्राम में 3 महीने तक काम करना पड़ेगा। यस, रश्मि मैम हमारे प्रोजेक्ट टीम से सीनियर स्पेशल एजुकेटर मैम। तो मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, मैं सारे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर, ये प्रोग्राम बेसिकली समझिए तो 6 मंथ का है, फिर भी हम 3 मंथ का रख रहे हैं कि मिनिमम हमने रखा है, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम पैकेज, ये कोर्स नहीं है। आप कह रहे मैं 1 महीने में कर लूँगा, 1 महीने में आप एक बच्चे के ऊपर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट करके कितने आप इफेक्ट्स ला सकते हैं। सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम जो कि आप मिनिमम 3 मंथ्स करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द IP ड्यूरेशन, ठीक है। एक IP का ड्यूरेशन, आप एक गोल ले रहे हैं तो दैट इज द IP ड्यूरेशन। वी ऑल नो, वी ऑल प्रोफेशनल्स नो कि हमारा IP ड्यूरेशन जो मिनिमम एक शॉर्ट टर्म गोल का होता है दैट इज 3 मंथ्स, इसीलिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स बोला जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली आप प्रोग्राम का पूरा प्रोसीजर समझेंगे तो वो तो 6 महीने का है, हम आपको 6 महीने नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। तो 3 मंथ इज द मिनिमम क्राइटेरिया, जिसके बाद ही आपका फाइनल असेसमेंट ओपन होगा, क्योंकि आपकी जो लर्निंग है इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग अ कोर्स, बल्कि ये है कि आप उस चीज़ को कैसे बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आपसे TLM मांगा गया है। TLM प्लीज़ आप इंटरनेट से कॉपी करके ना दें, हम उसको चेक करते हैं। TLM रेडीमेड TLM की पिक्चर ना दें, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आइदर द TLM हैज़ टू बी हैंडमेड, जो आपने खुद बच्चे के लिए बनाया हो, या फिर कोई ऐसा TLM जिसको लाया तो गया है खरीद के, लेकिन उसके ऊपर हमने एकोमोडेशन बच्चे के हिसाब से किया है, ठीक है। सपोज एक रेडीमेड पेक बोर्ड है, लेकिन हमने एक CP चाइल्ड के लिए उस पेक बोर्ड्स के छोटे छोटे जो कील है उसको बड़े बड़े बनाए हैं ताकि वो बच्चा भी उठा पाए।
तो हमने कहीं ना कहीं उसमें एक एकोमोडेशन किया है। तो इस तरह का एकोमोडेटेड टीएलएम या फिर हैंडमेड टीएलएम होना चाहिए। मार्केट परचेज सिंपली लोग अपना एक ब्लैकबोर्ड का पिक्चर डाल दे रहे हैं या फिर एक छोटा सा कॉपी वर्क का पिक्चर डाल दे रहे हैं, दैट इज नॉट बिली कंसिडर्ड एज टीएलएम। एक प्रॉपर टीएलएम होना चाहिए जो आपने बच्चे के साथ यूज़ किया है, जो बच्चे के साथ आपने काम करने के लिए बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और उस टीएलएम का आप डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे कि कैसे उस टीएलएम ने हेल्प किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रिपोजिटरी बेस्ट टीएलएम्स का। बेस्ट टीएलएम को रिवॉर्ड किया जाएगा और जो बेस्ट टीएलएम होंगे एक टाइम के बाद हम उन्हें ओपन सोर्स में डालेंगे अपने वेबसाइट पे, ताकि मान लीजिए कि आप आज आसाम में बैठ के काम कर रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए पंजाब में बैठ के एक स्पेशल एजुकेटर को आपका टीएलएम पसंद आ गया, तो उसे दोबारा रीइन्वेंट नहीं करना, वो आपके टीएलएम से आइडिया लेके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ गेटिंग दैट टीएलएम। तो हम चाहते हैं बेस्ट ऑफ द टीएलएम्स आप हमें सबमिट करें ताकि हम उसे शोकेस कर पाए और दूसरे स्पेशल एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री आपके टीएलएम को यूज़ कर पाए। आपके टीएलएम को आपकी क्रेडिट दी जाएगी, आपका नाम दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच पूजा मैम, आई थिंक आपने तो पूरा बता ही दिया है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आई होप रंजीत सर आपको क्लैरिटी मिली होगी। हाँ मैडम जी, हम बोला कि ये तो हम 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने मतलब कि पर डे हमको करने होगा क्या एक तो बच्चा को? देखिए 3 महीने का जैसे आप रजिस्टर करते हैं ना जिस दिन में, उस महीने मतलब उस तारीख से 3 महीने तक हम काउंट करते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोर्स में कितना टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनिंग में कितना टाइम दे रहे हैं, इंटरवेंशन में कितना टाइम दे रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि पर डे ही आपको करना है, क्योंकि हमें पता है कि आप पे बिजी स्केड्यूल होता है, कभी आप बिजी हो सकते हैं, कभी आपके पास टाइम होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेल्फ पेस्ट कर सकते हैं सर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना है आपको बस। और मैडम और जो पहले मैडम आके बोला हेलो रंजित सर, हेलो पूजा जी एक सेकंड। रंजित सर मैं एक बार एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। नमस्कार दे সকলোকে, মোৰ নাম ৰোহিত অৰবিন্দ চাৰিপা। তো আমাৰ কোৰ্সটো শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰথম পৰ্যায়ত কোৰ্সটো কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমি যিকোনো এজন এনেকুৱা নহয় যে আমি সদায় এজন স্ক্ৰীন কৰিবলৈ, যিকোনো এজন ষ্টুডেণ্ট আপুনি সিলেক্ট কৰি হয়তো স্কুলৰ বা স্কুলৰ বাহিৰৰো এজন ষ্টুডেণ্টক আইডেন্টিফাই কৰিলে হৈ গ'ল স্ক্ৰিনিঙত। এনি ওৱান ষ্টুডেণ্ট স্ক্ৰিনিঙত যিকোনো এজন বাচ্চা। যদি আপুনি স্কুলৰ লয় তেতিয়া স্কুলৰ ডিটেইলছ ভৰাবলৈ আহিব যে স্কুলৰ নাম ইউডাই স্কুল। যদি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয় বেলেগৰ হয়, স্কুলৰ বাহিৰৰ যদি হয় আমি তেওঁলোকেও ল'ব পাৰোঁ। মেনিটৰি নহয় যে স্কুলৰে হ'ব লাগিব, হয়তো আপুনি কোনোবা এজনৰ লগত কাম কৰি আছে তেনেকুৱা এজন বাচ্চাও সিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু স্যাৰ লেসন প্ল্যানটো লাগিব নেকি যেতিয়া আমাৰ টিএলএমৰ কথা ক'লে? लेसन प्लान दी चाहिए ना। जो इंटरवेंशन प्लान आमी जेटा अपनी कोर्स तो करिब ताते स्क्रीनिंग ऑप्शन आहिबो। अपनी जिकुनो एजन बच्चा सिलेक्ट करिले स्क्रीनिंग करिले हे एप टुते इंटरवेंशन प्लान आहि जाबो जे आमी की करिब লাগিব। जोंतो प्रॉब्लम उलाल किबा दा जदि प्रॉब्लम उलाले जेनेबा भाबिलक स्लो लार्नार उलाले, हे स्लो लार्नार एगेंस्टत आमार प्लान टू एपते दिबो। अपनी हेखिनिए फॉलो करब লাগিব, बेलेगके निजे बनाबो ना लागे। राइट पूजा जी, हम लोग को तो इंडिविजुअली लेसन प्लान नहीं बनाना है, जो इंटरवेंशन प्लान है उसी को फॉलो करना है। हाँ नहीं, वो अपने आपके पास स्ट्रैटेजी से आप यूज कर सकते हैं, इंटरवेंशन प्लान शेयर होता है, आपको बस वही इम्प्लीमेंट करना होता है। यस, सो इंटरवेंशन प्लान शेयर कर जाबो। हाँ, आपको खुद से ऐसा कुछ लेसन प्लान करना नहीं है, आपको टीएलएम बस अपलोड करना होता है अच्छे से। অকল আপুনি টিএলএম টো মানে ইন্টাৰভেনশন প্লেনো দিয়া যাব। সেই ইন্টাৰভেনশন প্লেনত যেনে ভাবিলক স্লো লাৰ্নাৰ এজন ওলাইছে, তেখেতৰ লগত আমি কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহি যাব। আমি সেইখিনি ফলো কৰিলো, ফলো কৰোঁতে আপুনি এটা টিএলএম আপোনাৰ ফালৰ পৰা সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে এটা টিএলএম আমি বনাব লাগিব। সেইটো আপুনি নিজে কৰিব লাগিব। আৰু ভাবিলক বিভিন্ন ডোমেইনত আহিব, কগনিটিভ বিহেভিয়াৰ, আপুনি যিকোনো এটা ডোমেইন সিলেক্ট কৰক তাতে এপত যোনটো আহিছে। আৰু আমি গ্ৰুপ এটা খুলিছোৱে, গ্ৰুপত গোটেই ডিটেইলছ শেয়াৰ কৰিম। बाकी अमित सर की बात करो ना, अमित सर, अमित जी अगर आप कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। पूजा मैम आप एक बार कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे कि कुछ सर मैम को थोड़ा सा डाउट है। मैं ये सोच रहा था कि हम अपने लैंग्वेज में अगर उनको थोड़ा सा बता देते तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप वंस आप एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं एक चीज़ एक बार ऐड कर लूँगा। अमित सर, सेशन कंप्लीट है, सेशन कंप्लीट है। अब हम रुके ही हैं कि टीचर्स के डाउट्स क्लियर कर सके और प्रोफेशनल्स के डाउट्स क्लियर कर सके। ओके ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गौतम सर
गौतम सर एक क्वेरी करिছিলে सो मैम एक चीज मैं बताना चाहूंगा जैसे कि गौतम ठाकुरिया सर ने उनका एक थोड़ा सा क्वेरी एक रेज किया था क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जी जो उनके अंडर में जितने स्पेशल एजुकेटर हैं या फिर आरपी रिसोर्स पर्सन एडिशनल रिसोर्स पर्सन ऐसे हैं तो वो पूरे टीम को मैनेज करते हैं आज के सेशन में ओके भी आए हैं और हमारे साथ ऐसे डीपीओ इंक्लूसिव एजुकेशन है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो एज ए स्पेशल एजुकेटर भी है सभी नहीं है लेकिन कई हैं तो उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट भी देखना होता है और साथ ही साथ वो इस प्रोग्राम पे भी इंटरेस्टेड है तो उनका वो क्वेरी था कि हम इतने ओवरबर्डन हैं तो हम अगर 3 महीना अगर इस प्रोग्राम में देंगे तो मैनेज कैसे करेंगे तो उनको मैं थोड़ा सा वो चीज क्लियर कर देता हूँ तो गौतम सर আপুনি যদি মোক শুনা পাই আছে তো যেনেকে ধৰক আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো হয় তো স্যাৰ মই আপোনাৰ যোনটো কুৱেৰি আছিলে হেতু মই ৰাইট ধৰিব পাৰিছোনে যোনটো আপুনি কুৱেৰি কৰিছিলে হয় তো এই প্ৰগ্ৰামটো কি হয় যেনেকে আমাৰ সকলোৰ মাজতে এটা কনফিউজন থাকিব পাৰে যে 3 মাহ কি আমি সদায় দি থাকিব লাগিব নেকি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যে নহয় আমি আজি যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এপটো মই এজ এ স্পেশাল এজুকেটৰ মানে সিআরই প্ৰগ্ৰামটো যদি মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো আজি তো আজিৰ পৰা মোৰ 3 মাহ সময় মিনিমাম মানে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা যোনটো মোৰ হেয়া টিএলএম বা এসেসমেন্টটো দিম তাৰ কাৰণে মই 3 মাহ ৰখিব লাগিব তো মই আজি কৰি ধৰক কোৰ্সটো মই এদিনতে কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰো কাৰণ বেছি সময়ৰ কোৰ্স নহয় আপোনালোকে এদিন দুদিনতে কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ সুবিধাটো চাই যেতিয়া আমি কোৰ্সটো কৰি ললো তেতিয়া আমি কি কৰিম সেকেন্ড ফেজটোত যাম যত আমি যিকোনো এটা বাচ্চা বা এটা ষ্টুডেন্ট আমি সিলেক্ট কৰিম আৰু সেই ষ্টুডেন্টটো কি হ'ব পাৰে আমাৰ স্কুলৰো হ'ব পাৰে আমাৰ কোনোবা চিনাকি মাজতো হ'ব পাৰে তো হেনকা যিকোনো এটা ষ্টুডেন্ট আমি স্ক্ৰিন কৰি ললো তো এই গুটে প্ৰসেস যোনখিনি থাকিব স্ক্ৰিনিং কৰিলো তাৰ ওপৰত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সেই গুটে প্ৰসেসটোৰ কাৰণে এটা সময় দিয়া গৈছে যে মিনিমাম 3 মাহ যাতে আমি এজন ষ্টুডেন্টক দিও আৰু হেতু এই বস্তুটো মিন নকৰে যে আমি 3 মাহে সেই বাচ্চাটোৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব বা এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত থাকিব লাগিব তো আমি থাকিমে বাৰু যেতিয়া আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো যেতিয়ালৈকে আমি পইণ্টছ কিনি নাপালো তেতিয়ালৈকে তো আমি নিজকে কম যে মই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছো তো হেতু মই কি কৰিব পাৰো যেতিয়া মই কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি ললো তাৰ পিছত কিছুদিন পিছত মই স্ক্ৰিনিং কৰিলো তাৰ পিছত ইন্টাৰভেনশন প্লানটো যেতিয়া আহিলে মই লাহে লাহে হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰিলো তো এই গুটে ডিউৰেচনটোৰ কাৰণে এটা সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা গৈছে হেতু হৈছে 3 মাহ সো 3 মাহৰ পিছত গৈ পেলেহে মই সেই এসেসমেন্টটো দিব পাৰিম যোনটো লাষ্টৰ ফাইনেল এসেসমেন্টটো থাকিব আৰু এসেসমেন্টটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ হেড অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ যোনটো সিআরআর নম্বৰটো আছে যেতিয়া গুটে বস্তুখিনি আপোনাৰ টিএলএম টো আপুনি দিলে টিএলএম টো এপ্ৰুভ হৈ গল সব বস্তু হল তেতিয়া সেই সিআরআর নম্বৰটো আরসিআই লৈকে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব তো এতিয়া কথাটো হৈছে ধৰক আমাৰ মাজত যি সকল সাৰ বাইদেউ ডিপিও আই সাৰ বাইদেউ সকল আছে আপোনালোকে মাঝে মাঝে যেতিয়া সময় পায় বা ধৰক আপোনালোকে কোনোবা এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট যদি আপুনি যেনেকে ধৰক এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত এংগেজ হৈ যায় তাৰ পিছত আপুনি যদি 50 পইণ্টস টু আৰ্ন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া প্ৰসেসটো সকলোৰ কাৰণে সেম হ'ব কিন্তু আপোনালোকে লাহে লাহে বস্তুটো কৰিলে হল এনেকুৱা নহয় যে আমি একে দিনত দুদিনতে কমপ্লিট কৰি ল'ব পাৰিম বা ধৰি ৰাখক যে আমি বেছি সময় দিব পাৰিম তো মই আপোনালোকৰ লগত ইন্ডিভিজুৱেলি কানেক্ট থাকি মই লিনা আৰু ৰোহিত আমি যি অসম টিমটো আছো আপোনালোকৰ লগত কানেক্টেড থাকিমে আৰু এই বস্তুটো আপোনালোকে আৰু কিমান ধুনিয়াকে বা ধৰক আৰু ইজিলি বস্তুটো কৰিব পাৰে তাত আমি সাপোৰ্ট কৰিম আৰু যেনেকৈ আমাৰ সকলোৰে এটা কুৱেৰি থাকিব পাৰে যে 3 মাহে আমি কৰিব লাগিব নেকি বস্তুটো মানে সদায় স্ক্ৰিন কৰি থাকিব লাগিব নেকি ষ্টুডেন্টক এটা এটাকে সদায় কৰিম নেকি বা যোনটো ইন্টাৰভেনশন প্লান আহিছে হেতু মই সদায় ইমপ্লিমেন্ট কৰি থাকিম নেকি তো হেনকুৱা নহয় সো আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা সুযোগ বুজি পেলে আপোনালোকে কৰিব কিয়নো আপোনালোকে মাল্টিপল স্কুলছ ভিজিট কৰে বা মাল্টিপল লৰা ছোৱালীৰ লগত আপোনালোকে কাম কৰে তো এটোটো সম্ভৱ নহয় যে আপোনালোকে এজন ষ্টুডেন্টক সদায় আপোনালোকে সময় দিব পাৰিব হেতু নহয় আপোনালোকে যেতিয়াই সময় পায় বা যেতিয়া হেতু স্কুলত ভিজিট হয় বা যেতিয়া হে বাচ্চাটোৰ লগত কাম কৰে সেইখিনি সময়তে কিন্তু মেক শিওৰ যোনটো যেতিয়া আমি ষ্টুডেন্টক আমি কোৰ্সটো প্ৰথমত কৰি ললো কোৰ্সটোৰ কাৰণে কোনো সময় সীমা নাই আপোনালোকে এদিনত কৰিব পাৰে এসপ্তাহত কৰিব পাৰে বা এমাহো লগাব পাৰে হেতু আপোনালোকে নিজৰ মতে নিজৰ সুবিধা বুজি চাব সেকেন্ড আমি যেতিয়া স্ক্ৰিন কৰিম সেই ষ্টুডেন্টক আমি স্ক্ৰিন আমি তেতিয়া কৰিব পাৰিম যেতিয়া ষ্টুডেন্টক আমি জানিম বা তাৰ এক্টিভিটিখিনি আমি গম পাওঁ তেতিয়াহে মই সেই ষ্টেটমেন্টখিনি ইয়েস বা নো বুলি দিব পাৰিম স্ক্ৰিনিং ফেজটো তো স্ক্ৰিনিংৰ কৰাৰ পিছত উলাই আহিব যে ষ্টুডেন্টৰ একচুয়াল কি চ্যালেঞ্জ পাই আছে কি অসুবিধাত ষ্টুডেন্ট অসুবিধাটো পাই আছে হেতু উলাই আহিব
ৰিপৰ্টখিনিও আপোনালোকে পাব আৰু তাৰ পিছত আহিব আমাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন প্লানটো তো ইণ্টাৰভেনশ্যন প্লান মতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰচেছখিনি বা যিখিনি আপোনালোকে জানে সেইখিনি বস্তুটো প্ৰয়োগ কৰিবই লগতে আমাৰ যোনটো ইণ্টাৰভেনশ্যন প্লান আছে সেইটোও আপোনালোকে মানে এজ এ ছাপোৰ্ট হিচাপে আপোনালোকে স্কুলত বা সেই ষ্টুডেণ্ট বা সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে যেতিয়া এই গোটেই প্ৰচেছটো হ'ব তাৰ মাজতে আমি যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম তেতিয়াতো ধৰক আমি এডিশ্যনেল আৰু হেল্পৰ কাৰণে আমি নিজে TLM বনাওঁ বা আমাৰ আগতীয়াকৈ কিছু TLM থাকিব পাৰে সো যদি আমাৰ যোনটো প্ৰবলেম আহিছে ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্টত যোনটো চেলেঞ্জ আহিছে যোনটো ডমিনৰ কাৰণে আমি TLMটো বনাব লাগে সেইটো যদি অলৰেডি আমাৰ লগত আছে তো আমি সেইটোকে দিব পাৰোঁ আৰু যদি আপুনি ভাবিছে যে নহয় আমাৰ লগত সেইটো TLM নাই আৰু আপোনাৰ এটা আইডিয়া এটা আছে TLM এটা আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিলে বনালে তো আপুনি সেই TLMটোৰ ফটো আৰু সেই TLMটোৰ এটা ডেছক্ৰিপশ্যন যে TLMটো আপুনি কেনেকৈ বনালে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োগ হৈছে আৰু কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তো এনেকুৱা দুই এটা বস্তু আপুনি এটা ডেছক্ৰিপশ্যন লিখি এই প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এপটোতে আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ এক্সপাৰ্টে সেই TLMটো আপোনাৰ চাব যদি গোটেই বস্তুটো ঠিক থাকে এপ্ৰুভ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ CRR নম্বৰটো আমাৰ RCI প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আপুনি তাৰপিছত ফাইনেল এছেছমেণ্টটো দিব পাৰে এতিয়া যদি ধৰক ইন কেছ কেতিয়াবা ৰিজেক্ট হোৱা চান্সেছটো কি থাকে ধৰক মই এটা TLM আপলোড কৰিলোঁ কিন্তু ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে এতিয়া ৰিজেক্ট হোৱা ৰিজন কি হ'ব পাৰে ধৰক মই যোনটো পিকচাৰটো ক্লিক কৰি আপলোড কৰিছোঁ এইটো ভালকৈ ভিজিবল হোৱা নাই বা ধৰক যোনটো যেনেকৈ মই TLMটো বা যোনটো এতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ ধৰক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডমিনত ষ্টুডেণ্টটো অসুবিধা পাই আছে কিন্তু মই TLMটো দিছোঁ বেলেগ এটা বস্তুৰ যোনটো এইটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয় তো তেতিয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ TLMটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে তো সেইটো সেনেকুৱা হ'লে ভয় খাবলগীয়া একো নাই আপোনালোকক আমি নিজেও কণ্টেক্ট কৰিম আমাৰ টিমটোৰ পৰাও আপোনালোকক কল আহিব মেছেজ আহিব চ' আপোনালোকে নেক্সট আকৌ কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰে কিয়নো আপুনি গোটেই অলমষ্ট কামখিনি গোটেইখিনি কৰিলে অকল TLMটোত গৈ পেলাই যদি কিবা ইছ্যু হয় তো সেই বস্তুটো আমি আকৌ কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিব পাৰি সেই গোটেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক আকৌ আমাৰ ফালৰ পৰা জনাই দিয়া যাব আৰু এটা কথা আছে যেনেকৈ ধৰক এই প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন প্ৰগ্ৰামটো আমি যোৱা কিছু মাহ ধৰি আমি লাষ্ট ইয়াৰো কৰিছিলোঁ হ'ব পাৰে আমাৰ মাজত আপোনালোকেও প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন প্ৰগ্ৰামটোত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ইয়াৰ আগতে আৰু আমাৰ 17টা মডিউল এটা কৰিছে চাগে এজ এ আপোনালোকে টিচাৰ বা ধৰক স্পেচিয়েল এডুকেটৰ হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰি চাগে কৰিছিলে কোনোবা দুএজন থাকিব পাৰে এনেকুৱা যদি চিনেৰিঅ হয় তো আপোনালোকে যোনটো নম্বৰ দি মই এবাৰ জাষ্ট জানিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ মাজত কোনোবা সেনেকুৱা আছেনে যে প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এপটো আপোনালোকে অলৰেডি এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে আৰু কোৰ্চ এটা কৰিছিলে এনেকুৱা আছেনে যদি আছে য়েছ বা ন এটা ৰেছপন্স কৰি দিবচোন ইয়াৰ আগতেও আমি এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ শিৱসাগৰ তাৰপিছত এনেকুৱা বিভিন্ন জিলাত অমিতজী মই কৰা মনত পৰে কৰিছিলোঁ চাগে হয় নিশ্চয় চ' এনেকুৱা কৰিছিলে হয় তো এনেকুৱা ধৰক মই এই কথাটো ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া ওলালো কিয়নো আমি যদি এই প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এপটোত এবাৰ যদি এজ এ টিচাৰ বা স্পেচিয়েল এডুকেটাৰ হৈ যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু মই মোৰ নম্বৰটো যদি দিছোঁ তেন্তে কি হ'ব যেতিয়া মই CRE প্ৰগ্ৰামটোত আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যাম তেতিয়া আপোনাৰ সেই নম্বৰটো মানে অলৰেডি এক্সিষ্ট দেখাব যে এই মোবাইল নম্বৰটো অলৰেডি এক্সিষ্ট হয় তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব বেলেগ এটা নম্বৰ দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব সাপোজ ধৰক মোৰ লগত এটা 1234 নম্বৰ এটা আছিলে যোনটো দি মই এজ এ টিচাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আগতে বা এজ এ স্পেচিয়েল এডুকেটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া মই যদি আকৌ CRE প্ৰগ্ৰামটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যাওঁ তে মোৰ 1234 নম্বৰটো মই যেতিয়াই দিম এক্সাম্পল দিছোঁ 1234 বুলি তেতিয়া কি হ'ব আহিব যে অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰি তো মই এতিয়া কি কৰিম তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ যদি আৰু এটা নম্বৰ আছে বেলেগ এটা নম্বৰ আছে আপুনি সেইটো দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে অথবা আপুনি ঘৰৰ যিকোনো এটা নম্বৰ দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰে তো সেইটো আমাৰ সেই CRE পইণ্টছৰ লগত একো মোবাইল নম্বৰ যোনটো দি পেলাই মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিম সেইটোৰ লগত কোনো ৰিলেটেড নাথাকে চ' আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো যিকোনো আন এটা মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তো আই গেছ এইটো অসুবিধা আপোনালোকে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে মই এতিয়া এড কৰি দিলোঁ তো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন এপটো আপোনালোকে এবাৰ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব যদি ডাউনলোড আছে তো বহুতেই ভাল আপোনালোকে চিম্পল নিজৰ প্ৰফাইলটো লগ আউট কৰি পেলাই আপোনালোকে CRE প্ৰগ্ৰামটোত ক্লিক কৰি আকৌ নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব আৰু যদি নাই তে এবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব তো এই দুটামান পইণ্ট মোৰ ফালৰ পৰা এড কৰিবলৈ আছিলে এতিয়া মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম আমাৰ মাজত যিসকল এতিয়া জইন হৈ আছে কাৰোবাৰ যদি আৰু কিবা ডাউট বা কুৱেৰি থাকে
তো এবাৰ ৰেজ কৰিব সো দ্যাট আমি এটলিষ্ট এই ইনিশিয়াল ফেজত যিখিনি আপোনালোকৰ কুৱেৰি থাকে সেইখিনি সলভ কৰি তাৰপিছত আমি প্ৰগ্ৰামটোত যেতিয়া আমি একচুয়ালি আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম মানে আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়াতো আমি সাপোৰ্ট কৰিম বাৰু তো এতিয়ালৈকে কিবা যদি কুৱেৰি থাকে তাৰপৰা ৰেজ কৰিব নমস্কাৰ স্যাৰ হয় স্যাৰ নমস্কাৰ ওকে স্যাৰ আপুনি শুনা হয় স্যাৰ শুনা পাইছো ক'ব স্যাৰ এই মোৰ তাৰ মানে 2032 লৈকে মোৰ সিআরই ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো অলৰেডি আপডেট হৈ আছে হয় হেল্ল' হয় হয় স্যাৰ শুনা পাইছো এতিয়া 2006 ত মই 50 মাৰ্কসটো মই পালো ধৰিলো মই পালো হয়নে নহয় এতিয়া মোৰ নেক্সট ৰিনিউৱেল 2033 এই 50 মাৰ্কটো তেতিয়ালৈকে থাকিব না নাথাকে ওকে ঠিক আছে স্যার তো এই বস্তুটো আমাৰ ভালকে আমাৰ পূজা মেমে আপোনাক ৰেসপন্সটো কৰিব পাৰিব মই বস্তুটো তেওঁক এবাৰ বুজাই দিছো পূজা মেম आप सुन पा रहे हैं मुझे यस बताइए हमारे साथ बाबू सैकिया सर है तो उनका एक क्वेरी है कि उनका ऑलरेडी आरसीआई में जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो ड्यू है वो आपका 32 लेके है सर 32 হয় স্যার उनका 2032 तक है तो अभी अगर वो ये कोर्स करते हैं 50 पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो वो क्या कैरी फॉरवर्ड होगा 33 से या इसका आंसर रश्मि मैम कर पाएंगी रश्मि मैम है एम आई ऑडिबल मैम रश्मि मैम काइंडली वेट 1 मिनट रुकिए मैं उनको बुला বাবু স্যার আপুনি এটা ধুনীয়া প্ৰশ্ন কৰিছে আই বিলিভ এইটো প্ৰশ্নৰ পৰা আমাৰ আন স্যাৰ বাইদেউ সকলোকো সহায় এটা হ'ব যে হয় স্যার যদি আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ধৰক 30 লৈকে 32 লৈকে আছে এতিয়া মই 50 পইণ্টছটো কালেক্ট কৰিলো তো সেই বস্তুটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড হ'ব নাই হয় হ'ব না 33 ত মোৰ ৰিনিউৱেল আছে 33 ৰিনিউৱেলৰ সময়ত মই এই মাৰ্কসটো কামত লাগিব না নালাগে যদি নালাগে মোৰ কোৰ্সটো এনেই হ'ব रश्मि हम ज्वाइन कर चुकी हैं तो वो आपको आंसर कर देंगे ठीक है एक सेकंड What is the question? यस रश्मि मैम सर का एक क्वेश्चन है कि उनका ना ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है वो 32 तक है मतलब आरसीआई में तो 33 में उनका रिन्यू होगा तो अगर वो ये 50 पॉइंट्स अभी अगर वो मिलता है वो अगर इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के 50 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो क्या ये पॉइंट्स उनको 33 में जब रिन्यू होगा उनका उसमें कुछ काम आएगा कैरी फॉरवर्ड होगा तो उनका ये क्वेरी देखिए एक बार जब कोई भी पॉइंट्स है एक बार आपके प्रोफाइल पे आ गया तो वो आ गया ठीक है वो हटाया नहीं जाएगा बिकॉज यू हैव टू कलेक्ट 100 CRE पॉइंट्स इन अ कोर्स ऑफ 7 years अर्लियर इट वाज 5 years नाउ इट इज 7 years तो 7 साल के अंदर आपको 100 पॉइंट्स करने तो अगर अभी क्रेडिट हो जाएंगे तब वो रहेगा लेकिन वो क्रेडिट कब तक होंगे मान लीजिए कि अभी आप नहीं करते आप सोचते कि मैं 7 साल के बाद करूं हो सकता है एट दैट टाइम दिस कोर्स इज नॉट अवेलेबल WHO आज अवेलेबल नहीं है ठीक है तो यस अभी अगर आप करते हैं वो पॉइंट आपको क्रेडिट हो जाएगा दैट विल बी सपोर्टिंग यू व्हेन यू आर रिन्यूइंग बिकॉज आरसीआई के मैंडेट के हिसाब से भी बता रही हूँ ये हमारे प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है आरसीआई का है कि अगर आपके क्रेडिट पॉइंट्स हैं और आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है देन यू कैन यूज इट फॉर योर नेक्स्ट रिन्यूअल बिकॉज वहाँ पे 2 ही तरीका होता है रिन्यूअल का या तो आप क्रेडिट पॉइंट्स 100 जमा करते हैं या फिर अदरवाइज व्हाट यू डू कि आप कोई अपग्रेडेड कोर्स करते हैं विच इज आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स एंड यू सबमिट द डॉक्यूमेंट So yes, this will be valid, but you will have to get the credit points now only. Okay, thank I hope you. I was able to answer. हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो বাবু স্যার আপুনি সাগে শুনিছে যে বস্তুটো এনেকুৱা হয় আপুনি এতিয়া যদি 50 পইণ্টছটো আপুনি যদি আৰ্ন কৰি থয় যোনটো আমাৰ 7 বছৰৰ কাৰণে 100 পইণ্ট আমাক লাগে ন তো হেতু আপোনাৰ কামত আহিব এনেকুৱা নহয় যে কামত নাহিব তো আহিব ৰিনিউ কৰিবৰ কাৰণে লাগিব তো আপুনি এটো ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিব নমস্কাৰ স্যাৰ হয় সাইদুল স্যার কব হয় কোর্সটো যদি আমি কোর্সটো আৰম্ভ কৰি কন্টিনিউয়াসলি 3 মাহত এদিনো আমি স্কিপ কৰিব নোৱাৰিম নেকি
স্যাৰ এইটো আনসাৰটো হৈছে নিশ্চয় পাৰিব আপুনি কোৰ্সটো আপুনি চাওক 21টা কোৰ্সত কি হয় আমাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আমি তিনিটা ফেজত ৰাখিছো প্ৰথম ফেজটো হৈছে কোৰ্সটো কৰা তো কোৰ্সটো কৰা আপুনি আপোনাৰ মতেই কৰিব আপুনি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলে নহয় আজি এটা মডিউল কৰিলে কালি এটা কৰিলে বা এটা মডিউলো কমপ্লিট নকৰিলে অলপ কৰিলে তো আপুনি আপোনাৰ সুবিধা মতে কৰিব কোৰ্সটো তাৰ পিছত কি হ'ব আপুনি কোৰ্স কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আপুনি আৰু 2 দিন 3 দিন ৰখিব পাৰে আপোনাৰ মতে আপুনি তাৰ পিছতে এটা ষ্টুডেন্ট স্ক্ৰিন কৰি ল'ব পাৰে বা আপুনি কিছুদিন পিছতো কৰিব পাৰে তো হেনেকুৱা নহয় যে আপুনি কন্টিনিউয়াসলি কৰি থাকিব লাগিব কাৰণ মডিউলে আছে 21টা আপুনি 21টা যদি সদায় এটা এটাকে মডিউল কৰে 21 দিনত কমপ্লিট হৈ যাব তো হেনেকুৱা টাইপৰ তো এইটো বস্তুটো 3 মাহৰ এটা মিনিমাম পিৰিয়ড দিয়া গৈছে সো দ্যাট আপোনালোকে যাতে কোৰ্সটো কৰি সেই বাচ্চাটোৰ লগত যাতে আপোনালোকে কিছুদিন কাম কৰিব পাৰে হয় সেইটো মানে এটা সময়সীমা তাতোক আমি ইন্টারভেনশন দিওতে বা স্ক্রিনিং কৰোতে আমি সপ্তাহত ধৰক এদিন গলো বা দুদিন গলো বেলেগ এটা সপ্তাহত দুদিন গলো তিনিদিন গলো এনেকে গৈ গৈ যদি 3 মাহ কমপ্লিট হয় তেতিয়াও হ'ব নিশ্চয় হ'ব আপোনাৰ যদি 3 মাহ যদি ক্ৰসও হৈ যায় 3 মাহ যদি ক্ৰসও হৈ গল ধৰক আপুনি ষ্টুডেন্টক ইমান সময় দিব নোৱাৰিলে এই 3 মাহত আপুনি বেলেগ বেলেগ আৰু কিহত কামত এংগেজ হৈ থাকিলে তো 3 মাহৰ পিছত হলেও হ'ব সো মিনিমাম সময়টো 3 মাহ কিন্তু হেতুৰ পিছতো আপুনি সময় ল'ব পাৰিব একো নাই চলি থাকিব আৰু স্যাৰ এটা কথা হেতু হৈছে আৰসিআইৰ আন্ডাৰত যিবোৰ আমি সিআরই প্ৰগ্ৰামত এটেন্ড কৰো সিআরই প্ৰগ্ৰামবোৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত যদি কোনোবাই ফিজ নিদিয়ে নাইবা এটেন্ড নকৰাৰ পিছত কোনো উইদাউট ইনফৰমেশন ৰিজনেবল কোনো ৰিজন যদি নাথাকে তেতিয়া হলে কি হয় সেইজনৰ যিখিনি পয়েন্ট কি হৈছে ক্ৰেডিট হৈ আছে তাৰ পৰা কিছু পয়েন্ট ডিডাক্ট হয় এটো আরসিআই রুলস যদি তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলে বা এটেন্ড নকৰিলে কোনো কাৰণ নদৰ্শোৱাকে এটেন্ড নকৰিলে তেতিয়া তেওঁ কি কৰে কিছু পয়েন্ট ডিডাক্ট কৰে এই ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব নেকি যদি আমি কোৰ্সটো এটেন্ড কৰিলো কৰি পেলাই কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলো কিবা কাৰণত তেতিয়া আমাৰ কিবা সিআরই পয়েন্ট আমাৰ ক্ৰেডিট হোৱা সিআরই পয়েন্টৰ পৰা ডিডাক্ট হ'ব নেকি তেনেকুৱা কথা আছে নেকি ওকে তো স্যার এটোৰ আনসাৰটো হৈছে যে নহয় ইয়াতে আপোনালোকে অকল বেনিফিট হে পাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ যে কিবা এটা ক্ষতি হ'ব হেনকা নহয় যদি আপুনি প্ৰগ্ৰামটো কমপ্লিটও কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰগ্ৰামটো কমপ্লিট কৰিলে আপোনাৰ পয়েন্টস ক্ৰেডিট হে হ'ব যদি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব আমি আপোনাৰ সিআরআর নম্বৰটো আরসিআই লৈকে প্ৰেৰণে নকৰো যেতিয়ালৈকে আপুনি একদম ফাইনাল ষ্টেজটো কমপ্লিট নকৰে তো ইয়াতে ডিডাক্ট হোৱা প্ৰশ্নটো মানে তেতিয়া নাহে তো হেতু লৈ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকিব যেতিয়া কমপ্লিট বস্তুটো গোটেই প্ৰগ্ৰামটো কমপ্লিট হ'ব মানে গোটেই আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টেজেস আছে সেইখিনি যেতিয়া আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব গোটেই তিনটা ফেজ তেতিয়া গৈ পেলেহে আমি আপোনাৰ নম্বৰটো আরসিআই লৈকে প্ৰেৰণ কৰিম যে এইখিনি কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া 50 পয়েন্টসটো আপোনাৰ তাত ক্ৰেডিট হ'ব তো তেতিয়া অকল ক্ৰেডিট হে হ'ব ডেবিট নহয় হেতু লৈ পেলে আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক এপছটো স্যাৰ ডাউনলোড কৰি কাম কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পৰা যাব আপুনি আজিৰ পৰাই কৰিব পাৰে স্যাৰ হয় নেকি সকলোৱে আজিয়ে যদি বিচাৰে আজিয়ে প্লে ষ্টৰত ওপেন কৰি প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন বুলি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে আজিৰ পৰাই কোৰ্সটো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক আৰু সেশনটোৰ পিছত মই আমাৰ সকলো ডিপিও স্যাৰ মেমক লৈ মই এটা গ্ৰুপো ক্ৰিয়েট কৰিছো তাতে গোটেই বিভিন্ন যিখিনি ধৰক আপোনালোকৰ সাপোৰ্টিং যিখিনি লিংক প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনৰ এপৰ লিংক ৱেবসাইটৰ লিংক আমাৰ এই আজি সেশনটোৰ ৰেকৰ্ডিংৰ লিংক এই গোটেইখিনি আপোনালোকক দিয়া যাব আৰু লগতে এনেকে যেনেকে চাব পাৰিছে এই গুগল মিটৰ চ্যাট বক্সটো এতিয়াও আমি লিংকটো শেয়াৰ কৰিছো তো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন PROJECT INCLUSION যদি আপুনি সাৰ্চ কৰে গুগল প্লে ষ্টৰত তেতিয়া আপুনি এপটো পাই যাব তো আজিৰ পৰাই আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে থ্যাংক ইউ হয় থ্যাংক ইউ স্যার আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে স্যার মই ৰঞ্জিত কৈছো স্যাৰ হয় আমি যেখিনি আমি ফিল্ডত যেটো বাচ্চা আমি সিলেক্ট কৰি কৰিম সেইখিনি আমাকে প্ৰতিটো দিনৰে আমি একটা ভিডিও কৰিব আৰু এটো আপডেট দিব লাগিব নেকি ভিডিও কৰিব লাগে নেকি হয় নাই স্যাৰ
ৰঞ্জিত ছাৰ আপুনি যোনটো প্ৰশ্ন কৰিছে তো সেনেকুৱা আমি ধৰক ষ্টুডেণ্টৰ লগত যদি কিবা এটা কাম কৰি আছো এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আমি ভিডিঅ' সেনেকুৱা দিব নালাগে কিন্তু আপুনি এটা ৰেকৰ্ড ৰাখিব পাৰে নিজৰ কাৰণে যে আপুনি ধৰক কিবা এটা এক্টিভিটি সেই বাচ্চাটোৰ লগত কিবা এটা এক্টিভিটি কৰিলে বা সেই আপুনি বনোৱা TLM টো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়া আপুনি এটা ডকুমেন্ট হিচাপে দুই এটা আপুনি ফটো ক্লিক কৰি থৈ দিব পাৰে এইটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপুনি ভিডিঅ' বা সেনেকুৱা ফটো আপুনি আপলোড কৰিব সেনেকুৱা মেন্ডেটৰী নহয় অনলি TLM ৰ ক্ষেত্ৰতহে লাগিব ইয়াৰ বাহিৰে একো নালাগে থ্যাংক ইউ ওকে ওকে স্যার ওয়েলকাম আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন হয় কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন বা ডাউট আছে এপ ৰিলেটেড ৱেবসাইট ৰিলেটেড বা আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো ৰিলেটেড এবাৰ সুধিব পাৰে স্যার হেল্ল' স্যার হয় হয় স্যার হেল্ল' মই শুনা পাই আছো হয় এটা ক'ব হেল্ল' ডাউনলোড কৰিলো মাত্ৰ এপটোত যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি গৈ আছো তাত যেটো কোৱালিফিকেশন আছে তাত স্পেশাল বিএডৰ হয় অপশন নাই তাত আমি কি বুলি ভৰাম মানে ওকে আপুনি CRE প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰি যেতিয়া আপুনি স্পেশাল বিএড মানে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি এন্টাৰ কৰে সেই অপশনটো পোৱা নাই ন हाँ हाँ তাত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন আছে কিন্তু স্পেশাল বিএডৰ নাই ओके ठीक है सर और अमित सर आप जी, पूजा मैम। जो हमारा बीएड होता है वो हमारा ग्रेजुएशन के अंदर ही आता है तो बेसिकली हमें उस कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस मतलब ऐसे डिग्रीज होती हैं तो हम एक एक को नहीं डाल सकते हमने कैटेगराइज किया कि कौन से डिग्रीज जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है कौन से ग्रेजुएशन में आता है तो उस अकॉर्डिंग बीएड तो हमारे ग्रेजुएशन के अंदर आता है तो आप ग्रेजुएट सिलेक्ट करके आगे चेक कीजिए उसमें ऑप्शंस आ जाएंगे उसमें आ जाएगा ना ठीक है तो मैम শুনা পাইছে চাগে আপুনি সেই গ্ৰেজুৱেচনটোত আপুনি সিলেক্ট কৰি আগবাঢ়িব পাৰিব কাৰণ ক্যাটেগৰী বহুত থাকে তো ইয়াৰ কাৰণে এটাতে দিয়া গৈছে সামাৰাইজ কৰি তো আপুনি গ্ৰেজুৱেচন যোনটো আছে হেতুত সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হয় এবাৰ কৰি চাওক কিবা অসুবিধা হলে আমি আছোৱে বাৰু যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে স্যার হেল্ল' হয় হয় পংকজ স্যার নমস্কাৰ স্যার মই নলবাৰী ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা পংকজ বজবৰাই ক'লো স্যার কাইন্ডলি আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো পালে ভাল আছিল মানে কিবা অসুবিধা পালে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰো ঠিক আছে নিশ্চয় স্যার মই অলৰেডি গ্ৰুপ আমাৰ সকলো ডিপিও স্যাৰ বাইদেউক লৈ পেলাই মই এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিছোৱে হয় তাতেও মই নম্বৰটো আমি সকলো যিমান আমাৰ টিম মেম্বাৰ আছে অসমত সবৰে নম্বৰটো মই তাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম হয় তাতে আপোনালোকে মই এটা কাম কৰো স্যাৰ মই হোৱাটছএপৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি দিছো ইয়াতে গ্ৰুপৰ হয় আপোনালোকে হেতুত ক্লিক কৰি এবাৰ আজিয়ে জয়েন হৈ যাব পাৰিব লিংকটোত মই ঠিক লিংকটো এতিয়া মই চেট বক্সত দি দিম হেতু আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি জয়েন হৈ যাব স্যাৰ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম স্যার আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন বা ডাউট থাকিলে এবাৰ সুধিব পাৰে মই আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো এটা এই আমাৰ চেট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰিছো তো সকলো স্যাৰ বাইদেউৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে এবাৰ এই লিংকটোত ক্লিক কৰি আমাৰ গ্ৰুপটোত জয়েন হৈ যাব আৰু লগতে মই আমাৰ ডিপিও স্যাৰ মেমক এবাৰ অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আমাৰ আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আই ফাংচনাৰিজ বা যোন স্পেশাল এডুকেটৰ আৰপি থাকে যোন এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে এলিজিবল হয় আপোনালোকে এবাৰ তেওঁলোকক গ্ৰুপটোত এড কৰাই দিব so that তেওঁলোকৰ কিবা কোৱেৰি থাকিলে যাতে আমাৰ লগত ডাইৰেক্টলি শেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি যাতে আমি তৎক্ষণাতে সলিউশনটো দিব পাৰো তো আই গেছ এতিয়া আৰু কাৰো একো হয় কাৰোবাৰ কিবা কোৱেৰি আছে হয় স্যাৰ নমস্কাৰ ল'ব হয় নমস্কাৰ হেল্ল' স্যাৰ মই নলবাৰীৰ পৰা কৈছো ৰ'ব মানে আপোনালোকে কোৰ্সটো শেষ হোৱাৰ পিছত যিটো এমসিকিউ দিব 10টা হয় এইটো নিশ্চয় অনলাইনে হ'ব অনলাইনে হ'ব স্যাৰ হয় অনলাইনে হ'ব আচ্ছা এই অনলাইনত কিবা টাইম থাকিব নেকি এটা কোৱেশ্চনৰ এগেইনষ্টত 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ড এনেকুৱা কিবা টাইম থাকিব নেকি ওকে ঠিক আছে স্যার সো पूजा मैम जो लास्ट मैसेज হয় হয় पूजा मैम जो हम लास्ट में 10 क्वेश्चन के असेसमेंट देंगे उसमें उसका कोई टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि इतने समय में वो 10 मिनट्स का होता है 10 मिनिट्स ओके তো হেল্ল' স্যাৰ আৰু লগতে মই সকলোকে আনসাৰটো কৰিম যে স্যাৰ হয় হয় ক'ব আৰচিআৰ এটা নিয়ম আছে যে যেতিয়া আমি চিআৰই পইণ্টৰ কাৰণে
আমি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ তেখেতসকলৰ পৰ্টেল আছে আৰু পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলে তেখেতসকলে CRE পইণ্ট নিদিয়ে বা CRE এটেণ্ড হ'লেও পইণ্ট নিদিয়ে। এনেকুৱা হৈছে আমাৰ লাইফত। তাৰমানে RCR পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলে CRE মিটিং এটেণ্ড কৰিলেও আমাক পইণ্ট নিদিয়ে। এতিয়া আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নোহোৱাকে পইণ্টটো দিব পাৰিব জানো? স্যাৰ প্ৰথমটো হৈছে যে আপোনাৰ RCIত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো থাকিব লাগিব, যোনটো CRR নম্বৰ যদি নাথাকে আপুনি এই কোৰ্সটোতে নহয় স্যাৰ, নহয় স্যাৰ, মই সেইটো কোৱা নাই। অমিত মই মই কোৱা নাই স্যাৰ। হেল্ল' মই কৈছো কি স্যাৰ হেল্ল' স্যাৰ হেল্ল' হয় য়েছ আমাৰ ইয়াত মানে গোটেই কোৰ্সটো আমাৰ যোনটো প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন কোৰ্স সেইটো আপোনালোকে RCI পৰ্টেলত যদি যায় তাতে অলৰেডি নটিফিকেশ্যন আমাৰ কোৰ্সটো দিয়া আছে। সো ইয়াতে আমাক সেই অনলাইন মোডত মানে ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ য'ত আমি পাৰমিশ্যন পাইছো। সো আমাৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া আমি CRR নম্বৰ যেতিয়া ফৰৱাৰ্ড কৰো সেইটো অট'মেটিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায় তাতে। সো এক্সট্ৰাকে আপুনি RCIত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে। আপোনালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ যদি ক্লিক কৰে তাতে আমি লিংক দিয়া আছে, আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম। RCI অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এই যোনটো কোৰ্স অনলাইন CRE প্ৰগ্ৰাম তাৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। সো বেলেগকে আপোনালোকে গৈ RCI ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে, সেইটো আমাক মানে এপ্ৰুভেল দি থৈছে RCI ফালৰ পৰা যে আমাৰ কোৰ্সটো কৰি গোটেই প্ৰচেছটো কৰিলে CRR নম্বৰটো দিলে তেতিয়া অট'মেটিক ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰগ্ৰাম হয় গোটেই ইণ্ডিয়াত থেংক ইউ অনলাইন মোডত। ঠিক আছে। জাষ্ট এইটোত মানে হেৰিয়ে আপোনাৰ যদি CRR নম্বৰ আছে দেন আপুনি আৰু একো টেনচন কৰিব নালাগে। বাকী গোটেইখিনি পইণ্টছ গোটেই প্ৰগ্ৰামটো আপুনি এবাৰ কমপ্লিট কৰিলে সেই পইণ্টছখিনি আপোনাৰ তাত ক্ৰেডিট কৰা যোনখিনি দায়িত্ব আছে সেইখিনি আমাৰ হয়, সেইখিনি আমি কৰাম। সো জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটোত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি বাকী গোটেইখিনি বস্তু কৰিব যোনকেইটা ষ্টেপছ আছে। তাৰপিছত TLM-টো যেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা ধৰক বা TLM-টো আপুনি ছাবমিট কৰিলে এপ্ৰুভ হৈ গ'ল, আপুনি 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিলে আৰু ছাৰে এটা ভাল প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে 10টা প্ৰশ্নৰ যে উত্তৰ দিম তাৰে কিবা ডিউৰেশ্যন থাকিব নেকি। তো 10 মিনিটৰ সময় দিয়া যাব, সেইটো টাইমটো আপোনালোকে দেখা পাব যেতিয়া 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থাকিব। তো সেই 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপুনি সেই 10টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিব লাগিব। তো তাৰপিছত আমাৰ ফালৰ পৰা বাকী গোটেইখিনি বস্তু কৰা যাব। সো এইখিনি আছিলে, আই বিলিভ আপোনালোকে আনসাৰটো পাইছে। আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন? হেল্ল' স্যাৰ, হেল্ল'। হয় বাইদেউ ক'ব। হয় স্যাৰ, যিটো MCQ কুৱেশ্যন হ'ব এইটো শ্লাইডত বুলি যে থাকে স্যাৰ, তাত আহিব নেকি নে বাইদেউ আপোনাৰ মাতটো অলপ ব্ৰেক হৈ আছিলে, কি ক'লে? ফেনখন অফ কৰি দিয়াচোন। স্যাৰ MCQত যিখিনি কুৱেশ্যন আহিব হয় শুনা পাইছেনে স্যাৰ? হয় এতিয়া শুনা পাই আছো। শ্লাইড হিচাপে আহিব নেকি? আমাৰ তাৰমানে কিছুমান CRE অনলাইন যেতিয়া আমাৰ CRE ট্ৰেইনিং হয় তেতিয়া মানে কিছুমান MCQ কুৱেশ্যন দিয়ে, সেই কুৱেশ্যন বিলাক আমাৰ শ্লাইডত দি দিয়ে। তাৰমানে তেতিয়া কিছুমানৰ শ্লাইডতো নাহে, তেতিয়া আমি MCQ কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰো। ওকে, তো এইটো বস্তুটো আপুনি এপটোতে পাব, কিন্তু শ্লাইড মানে মই বস্তুটো ধৰিব পৰা নাই। মানে এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো যে তাৰ পিছত ভিজিবল হয় সেই কথাটো কৈছে নেকি আপুনি? নে হয় মানে এক্সট্ৰাকে নাহে, এক্সট্ৰাকে শীট নাহে। আপুনি যেতিয়া এপ দিব, অমিত মই সৰি দেই ইন্টাৰাপ্ট কৰিলো। হয় 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 হয়। সো আমাৰ লাষ্টৰ ফেজটোত নৰ্মেল আমি যেনেকে হোৱাটছএপ ফেচবুক ইউজ কৰো, কেতিয়াবা আপোনালোকে হয়তো ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত প্ৰশ্ন পাইছে yes নে no, এনেকুৱা জাষ্ট ক্লিক কৰি দিলে নেক্সটত আহি যাব। তো একদম ইন্টাৰফেচটো বহুত ধুনীয়াকে বনোৱা গৈছে। আপুনি এছেছমেন্টত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এটা প্ৰশ্ন আহিব, নেক্সট ক্লিক কৰিলে পিছলৈ আহি যাব, বহুত সুন্দৰভাৱে আহে। আৰু এটা বস্তু মই সাজেষ্ট কৰিম চবকে, যিহেতু আমি হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো লিংকটো কাইণ্ডলি সবে জইন কৰি লওক। সো আমি ইনিশিয়েল ফেজত আপোনালোকে বেছি ফাৰ্ষ্ট কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি লওক, তাৰপিছত আমি আৰু এটা বস্তু কৰিব পাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা এই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে আমি বেলেগকে আকৌ সেকেন্ড পাৰ্টটো 15 দিনৰ পাছত আকৌ 4টা বজাত যে ডাউট ক্লিয়াৰ সেশন হয়, তেতিয়া আমি সেকেন্ড পাৰ্টটোৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ মিটিং পাতি দিব পাৰিম। তেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনিঙত যোৱাৰ আগত আকৌ এবাৰ ভালকে বুজি ল'ব পাৰিব। এতিয়া জাষ্ট কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰিব। হয় স্যাৰ, আৰু যদি আমি উইদিন 3 মান্থত যদি কমপ্লিট নহয় আমাৰ কোৰ্সটো, আকৌ এক্সটেন্ড কৰিবলৈ হলে আমি কিবা ফৰ্মেলিটিজ কৰিব লাগিব নেকি? নাই বাইদেউ, একো কৰিব নালাগে।
মানে চাওক যেনেকে আমি আলোচনা কৰিছিলো যে মিনিমাম 3 মাহ মিনিমাম মিন্স আপুনি তাৰ পিছতো বস্তুটো ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰিব সো আপোনাক যদি ধৰক কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি ষ্টুডেন্টৰ লগত ইন্টাৰভেনশনটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে বা ধৰক কিবা এটা অসুবিধাত পৰিলে যত আপুনি কোৰ্সটো কৰি লৈছে কিন্তু স্ক্ৰিন কৰিব নোৱাৰিলে হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একো নহয় একো ফৰ্মালিটিজ কৰিব নালাগে মিনিমাম 3 মাহ কিন্তু তাৰ পিছতো আপুনি বস্তুটো কৰিব পাৰিব पूजा मैम इसका तो मैक्सिमम कोई ड्यूरेशन नहीं है कि मुझे 6 मैक्सिमम महीने कोई 1 साल में ड्यूरेशन करना नहीं है है नहीं मैक्सिमम कोई ड्यूरेशन नहीं है मिनिमम है 3 मंथ मींस 3 मंथ पहले अगर हम सोच रहे हैं कि 10 दिन के अंदर सब कुछ करके हमें पॉइंट्स मिल जाएगा तो वो नहीं होगा एटलीस्ट 3 मंथ हमें इस प्रोग्राम में काम करना पड़ेगा तो ये है मैक्सिमम नहीं है ऐसा नहीं है कि टाइम पीरियड है टाइम लिमिट है ऐसा कुछ नहीं है मिनिमम आप 3 मंथ तक काम कीजिए फिर आपके पास एलिजिबल आप हो जाते हैं सीआरई पॉइंट्स के लिए আৰু স্যাৰ আমি যিখিনি ষ্টুডেন্টৰ লগত বা হোম বেচ যিখিনি ওএসসি চাইল্ড থাকে তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি আমি ইন্টাৰেকশন কৰিম সেই ভিডিঅ' বিলাকটো দিব নালাগে নাই নালাগে বাইদেউ এইটো যেনেকে আমাৰ আৰু এজন ছাৰৰ প্ৰশ্ন আছিলে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ষ্টুডেন্টৰ লগত যিখিনি কাম কৰি আছে ভিডিঅ' ফটো হেনকা আপোনালোকে আপলোড কৰিব নালাগে বা আমাক শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে আপোনালোকে এনে জাস্ট নিজৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে কেইটামান ফটো লৈ থব পাৰে নিজৰ কাৰণে যে এই প্ৰগ্ৰামটো আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিলো আগতে বাচ্চাটো এনেকুৱা আছিলে যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো কমপ্লিট কৰিলো তেতিয়া আমি এইবোৰ চেঞ্জ দেখা পাইছো তো সেইখিনি জেনাৰেলি আমি সকলোৱে ৰাখো তো হেনকা আপুনি নিজৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে লৈ থব পাৰে কিন্তু সেই বস্তু আমাৰ লগত কোনো ধৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে মানে প্ৰয়োজন নাই এটো অকল টিএলএম টো আপলোড কৰিলে আৰু ইভেন বাচ্চাৰ যোনজন বাচ্চাৰ লগত কাম কৰিব তেওঁলোকৰ ফটো আপলোড নকৰিব পাৰি অকল টিএলএম যোনটো আপুনি ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে অকল টিএলএম টো ভালকে ফটো ঠিক আছে কোৰ্সটো ইয়াতে নহয় স্যাৰ কোৰ্সটো আমি ক'ত পাম স্যাৰ এপটো দিছে নহয় হয় এপটো আপোনালোকে পাব প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন বুলি মই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছো আমি অলৰেডি এই মিটিংৰ চেট বক্সত আৰু লগতে মই এটা কাম কৰিম আমাৰ যিমান ধৰক ডিপিও ছাৰ মেম আছে ডিপিও আই ছাৰ মেম তেওঁলোকৰ লগতো মই পাৰ্সোনালি শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু আমি এটা গ্ৰুপো বনাইছো সেই গ্ৰুপটোত আপোনালোকৰ মানে সুবিধাৰ কাৰণে মই চেট বক্সত সেই গ্ৰুপটোত কেনেকৈ এড হ'ব এটা লিংক দি দিছো হেতু ক্লিক কৰিলে WhatsApp গ্ৰুপটোত এড হৈ যাব তাতেও মই লিংক দি দিম অথবা আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ যৰ পৰা আপোনালোকে এপ ডাউনলোড কৰে তাতে সিম্পল প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন মই এটা মেছেজ এটা পঠালো এতিয়া এই বস্তুটো আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে তো তেতিয়া এপটো ডাউনলোড হৈ যাব মই লিখি দিছো চেট বক্সত প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন হয় প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন তো সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে ডাউনলোড কৰিব আৰু ইন কেস যদি কিবা ইস্যু থাকে আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত টাচত থাকিম কন্টাক্টত থাকিমে তো কিবা ইস্যু থাকিলে আপোনালোকে WhatsApp থাকে আমাৰ যদি কিছুমান কোৱেৰি থাকে আমি আপোনালোকৰ লগত কন্টাক্ট কৰিব পাৰিম স্যাৰ এট এনি টাইম হয় নিশ্চয় যিকোনো সময়ত আপোনালোকে নিজৰ কোৱেৰিজ খিনি WhatsAppৰ জৰিয়তে হওক কলৰ জৰিয়তে হওক আপোনালোকে আমাক কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আমি ইয়াতে আমাৰ ডাইৰেক্ট আইটি टीमৰ कॉन्टैक्ट डिटेल्सও অলপ আগত মেমে शेयर কৰিছিলে मैं एक बार पूजा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारा हेल्पलाइन डिटेल्स है ना वो वाला स्लाइड थोड़ा सा आप अगर उस स्लाइड में रखते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हां ठीक है एक মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক এই পেজটোৰ যোনটো নম্বৰটো দিয়া গৈছে আৰু এটা ইমেইল আইডি আছে আমিতো আপোনালোকৰ লগত কানেক্টেড থাকিমে লগতে এইটো আমাৰ ডাইৰেক্ট আইটি টিমৰ হয় কিবা ধৰণৰ কিবা যদি ডাউট থাকে কোৱেৰি থাকে আমাৰ আইটি ৰিলেটেড প্ৰগ্ৰাম ৰিলেটেড তো আপোনালোকে এইটোতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তো এটা স্ক্ৰীনশ্বট সকলোৱে লৈ থব হয় থ্যাংক ইউ স্যাৰ ওকে ওয়েলকাম I believe যিখিনি আমি আলোচনা কৰিছো পূজা মেমে বহুত ধুনিয়াকে কথাখিনি আমাৰ মাজত ৰাখিছে सो पूजा मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छे से पूरे सीआरई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम हम सभी को अच्छे से समझाया आई बिलीव जी और मुझे लगता है कि हम सब इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं स्पेशल एजुकेटर्स हैं सभी इस प्रोग्राम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे इसको यूज करेंगे इसके बेनिफिट्स लेंगे और कभी भी कोई भी क्वेरीज होता है मैं সকলো স্যার বাইদেউক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমি সদায় আছো এনেকুৱা নহয় যে আজি সেশনটো লৈ লৈছো আৰু হৈ গল আমাৰ এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে আমাৰ লগত কানেক্টেড থাকিব আৰু আমি এই গোটেই জাৰ্নিটোত আপোনালোকৰ লগত থাকিম ওকে সো আই থিংক কাৰো একো কোৱেৰি নাই
তো আমি এই আজিৰ আলোচনা চক্ৰটো ইয়াতে সামৰিব পাৰোঁনে? মই এবাৰ আমাৰ ডিপিঅ ছাৰ মেমক এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যোন এতিয়া কানেক্টেড আছে আমাৰ লগত। ছাৰ আমি এতিয়া ক্লোজ কৰিব পাৰোঁনে? নিশ্চয় হয়, নিশ্চয় কওকচোন ছাৰ। অমিতজি বহুত বহুত ধন্যবাদ। So many thanks Pooja ma'am ji, Amit ji and Rohit Bora ji। और उम्मीद है कि हम ये एक साथ आगे आगे जाकर ये सब हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, so thank you once again। Thank you so much, sir. Thank you so much, professionals and officers, आप लोग throughout the session और इतना interactively participate किया। Thank you so much, अमित जी and रोहित जी, इतना support करने के लिए। And I hope जो भी हमने डिस्कस किया आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप सभी को 50 CRE पॉइंट्स जल्द से जल्द मिले। थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन लीव द सेशन एंड कंटिन्यू विद योर डेली रूटीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am. কি বোলে কয়